Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here with the novel Clear Light of the Day written by Anita Desai. In the previous video we have come to know about the novel is about the four siblings and their story, and this is a very autobiographical novel of Anita Desai which is written in 4 parts. As we have already discussed that in this video we are going to do the parts of the novel, so I'm here with a part 1 and part 2 of the novel which we will cover in this video only. For the part 3 and part 4, please wait for the next video and watch that also. Part 1, as we know, the part 1 is of the present, where the Tara, the sister of Bim, came to her house, the old house where they used to live in their childhood. So they came here for the marriage of Raja's daughter, Raja, who is the brother of Bim and Tara. Here, what happened? She felt nostalgic. She come to know, she remembered all their childhood feelings, their childhood time, how they spent their time with each other. So she felt nostalgic. And later on, what happened? She was very stressed after seeing the condition of Baba, who is a grown man but is actually a mentally slow person. He see that his gramophone breaks down, and how he was very much distressed after the breakdown of the gramophone of Baba. She asked Baba to go to the office, but he refused. So after seeing that condition of his brother Baba, she also get very stressed. Here the husband of Tara, Bakul, also comes in, and the Bim offered him tea of the milk which was left behind after feeding the cat. So we see that all the conditions. Let's start from the something. One morning in 1980, Tara Das wanders around in her childhood home in Old Delhi. Feeling nostalgic, Tara and Bakul are in the town for the wedding of Raja's daughter, from whom Bim is angry. So इस पॉइंट में हमने क्या देखा कि तारा और बकुल जो है वो बिम के घर आए हुए हैं, उनके चाइल्डहुड के घर आए हुए हैं जहाँ उनका बचपन बीता है तारा का, और उसे सारी बचपन की बातें याद आती हैं. वो यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ से उन्हें राजा की जो डॉटर है उनकी शादी में जाना है, लेकिन बिम वहां जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि बिम जो है वो राजा से गुस्सा है, एंग्री है. The sister discuss the aging house and have tea. Baba comes in, a mentally slow grown man. He plays musical records all day. जो बाबा है वो सारा दिन म्यूजिक बजाता रहता है अपने ग्रामोफोन से, एंड ये सब चीजें जो है सारों को परेशान करती हैं क्योंकि बाबा कुछ और काम नहीं करता, सिर्फ म्यूजिक प्ले करता रहता है सारा दिन. She asks Baba to go to the office, but he declines. Here we see कि बाबा किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी ही नहीं है, मेंटली स्लो है, हर टाइम म्यूजिक में लगा रहता है, और जब उसकी सिस्टर तारा उसको ऑफिस जाने के लिए कहती है तो वो मना कर देता है. इसके बाद क्या होता है? द नीडल ऑफ बाबाज ग्रामोफोन ब्रेक्स एंड द साइलेंस कोज डिस्टर्ब हिम. तो जो बाबा का जो ग्रामोफोन है उसकी जो निडल है वो टूट जाती है, तो इससे सारे बिल्कुल सन्नाटा छा देता है, बिल्कुल एक साइलेंस बिखर जाती है सब जगह, और इससे बाबा बहुत परेशान हो जाता है. परेशान होकर वो बाहर गली की तरफ भाग जाता है, और वहां जो वो क्राउड है, जो भीड़ है, वो भी उसे परेशान कर देती है. तो देखिए, he rush to the streets and get distraught by the crowd and come back. तो वो भीड़ से भी वहां परेशान हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं हो पाता, वापस भागकर घर आ जाता है. There are sour feelings between Bim and Raja. पार्ट 1 में हम देखते हैं बिम और राजा, दोनों भाई बहनों के बीच में जो है खटास है, सार फीलिंग है. Bim shows Tara a letter where Raja and asks Bim to pay same rent as their parents were charged. अब इस एंग्रीनेस का, इस सैडनेस का रीजन क्या है? रीजन ये भी है कि राजा जो है उनके लैंडलॉर्ड की डॉटर से शादी कर लेता है. अब लैंडलॉर्ड मर जाता है, डाई हो जाता है, मर जाता है, तो राजा अपनी सिस्टर को कहता है कि तुम्हें वो ही सेम रेंट मुझे पे करना पड़ेगा जो हमारे पेरेंट्स के टाइम तुम लोग पे करते थे. सो ये लेटर जो है वो बिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस लेटर को पढ़ के, और वो इस लेटर को संभाल कर रख लेती है एज अ टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस, ताकि उसे याद रहे कि राजा कैसे बिहेव कर रहा है. सो ही आस्क्ड देम टू पे द सेम रेंट, कि आप सेम रेंट दो.
As a token of remembrance, she kept the letter and refuses to go to Raja's marriage, Raja's daughter marriage. तो इन सब चीजों से गुस्सा होकर वो उस लेटर को अपने पास रख लेती है और मना कर देती है कि मैं राजा की बेटियों की शादी में, राजा की डॉटर की शादी में नहीं जाऊंगी. At the end, Bim speaks of seeing specter of Aunt Meera. लास्ट में बिम अपनी सिस्टर को, तारा को बताती है कि उसने कोई परछाई देखी थी आंट मीरा की आफ्टर शी डाइड, जब उसकी डेथ हो गई थी. और उसके बाद वो कुछ चीजें डिस्कस करनी स्टार्ट कर देते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, क्या क्या उसका इफेक्ट आया, क्या क्या कुछ हुआ. तो ये सब बातें वो डिस्कस करनी स्टार्ट कर देते हैं. ये सब हम देखते हैं पार्ट 1 में, जो कि सारा प्रेजेंट को शो कर रहा है. तारा बिम के घर पर आई हुई है, बकुल भी साथ आया हुआ है, उन्हें राजा की बेटियों की शादी में जाना है. यहाँ तारा सारी कंडीशन देखती है, बाबा की क्या कंडीशन है, मेंटली कैसा चल रहा है, म्यूजिक में खोया हुआ है, और वो अपनी बहन बिम के साथ भी डिस्कस करती है. और बिम भी उसे एक लेटर शो करती है जो दिखाता है जिसमें राजा ने कहा है कि आपको सेम रेंट देना है जो आप मेरे फादर इन लॉ को देते थे. अब हम आते हैं पार्ट 2 में. एज वी नो दैट द पार्ट 2 इज ऑफ द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. पार्ट 2 किस समय का है, जब इंडिपेंडेंस का जो टाइम यानी कि 1947 का टाइम जो है पार्ट 2 में बता रहा है. पार्ट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पार्ट 2 में उनका पूरा दिखाया गया है कि एट द एडल्ट एज, जब वो अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मैरिज वाली जो एक एज दिखाई गई है उसमें सब कैसे कैसे बिम को छोड़कर एक एक करके जा रहे हैं, ये सारा कुछ इसमें दिखाया गया है. In 1947, Bim and Raja was closer, but Raja influence towards Hyder Ali Urdu language and his frequent going Hyder Ali house created distance. Here, in this part, we clearly come to know कि Bim और राजा में differences कैसे आए. Bim और राजा बहुत एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, भाई बहन आपस में बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन राजा को जो था वो हैदर अली की तरफ उसका झुकाव बढ़ता जा रहा था. उसके लैंडलॉर्ड जो थे हैदर अली, उसकी तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा था. उर्दू लैंग्वेज सीखने में वो इंटरेस्टेड थे, उर्दू कॉलेज में वो जाना चाहते थे, और जिसके खिलाफ उसके पेरेंट्स भी थे, बिम भी थी, इसलिए उनके बीच में डिस्टेंसेस आने शुरू हो गए. बिम, राजा, तारा एंड बाबा वॉज नॉट पर्टिकुलरली क्लोज टू देयर पेरेंट्स. ये चारों भाई बहन अपने पेरेंट्स के ज्यादा क्लोज नहीं थे. वन डे मदर फॉल इल एंड डाइड. एक दिन उनकी मदर जो है बीमार पड़ जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है. आफ्टर कुछ सम टाइम जो उसके फादर है वो भी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है. और उन सबको लुक आफ्टर कौन करता है, उनका ध्यान सब कौन रखता है, आंट मीरा. आंट मीरा यूज टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन. हम यहाँ पर देखते हैं पार्ट 2 में कि बिम से इस टाइम उसके पेरेंट्स भी अलग हो चुके हैं. हैदर अली फ्लू अवे ड्यू टू रायट्स विच डिस्ट्रेस्ड राजा. हैदर अली, वहां पर इंडिपेंडेंस का टाइम है तो राइट्स बहुत ज्यादा हुए थे, बहुत ज्यादा दंगे वगैरह पार्टीशंस हुए थे. सो हैदर अली चले जाते हैं तो राजा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसका अट्रैक्शन होता है उसकी डॉटर की तरफ. तो राजा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड होता है. तारा यूज टू स्पेंड टाइम विद मिश्रा सिस्टर वेयर शी मीट बकुल. तारा जो है उनकी जो मिश्रा सिस्टर है नेबरहुड में ही है, उनकी सिस्टर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी और वहीं पर उसे बकुल मिला था. देन शी फॉल इन लव विद द बकुल एंड मैरिड हिम. डॉक्टर बिस्वास एक कैरेक्टर हमारे नॉवल में आते हैं जो कि एक डॉक्टर है. वो उन्होंने आंट मीरा का भी ट्रीटमेंट किया था. तो वो तारा के जो है बिम के घर पे आते जाते रहते हैं और ही गॉट इनफैक्चुएटेड विद बिम. उनका बिम की तरफ लगाव हो गया था, वो बिम की तरफ आकर्षित हो रहे थे. देन ही इन्वाइटेड बिम इन अ कॉन्सर्ट. उन्होंने कॉन्सर्ट में बुलाया, अपनी मदर से मिलने के लिए भी कहा. बट व्हेन बिम मीट द मदर ऑफ डॉक्टर बिस्वास, शी कम टू नो दैट हिज मदर इज नॉट रेडी फॉर देयर मैरिज. हम एक बार लाइन इसमें भी देख लेते हैं. डॉक्टर बिस्वास, अ यंग मैन, बिगिंस इन्फैक्चुएटेड विद बिम एंड इन्वाइटेड हर टू अ कॉन्सर्ट टू मीट हिज मदर. मदर से मिलने के लिए बुलाया. वेयर बिम कम टू नो दैट हिज मदर इज नॉट इंटरेस्टेड इन देयर मैरिज. यहाँ पर डॉक्टर बिस्वास भी बिम से अलग हो गए हैं. नेक्स्ट, राजा वॉज रिक्वायर्ड टू टेक फादर बिजनेस. क्योंकि फादर की भी डेथ हो जाती है तो राजा को अपने पापा का बिजनेस संभालना था, फादर का बिजनेस संभालना था. बट ही रिफ्यूज. तो यहाँ राजा मना कर देता है. ही लिव टू हैदराबाद टू लुक फॉर हैदर अली. और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हैदर अली को देखने के लिए हैदराबाद चला जाता है. तो हेयर ऑल्सो बिम से अब राजा भी अलग हो गया है, पेरेंट्स भी अलग हो गए हैं.
और तारा भी अलग हो गई थी क्योंकि उसने बकुल से शादी कर ली थी, वो बकुल के साथ चली गई थी। तो अब यहाँ रह कौन जाता है, सिर्फ और सिर्फ आंट मीरा रहती हैं, तारा बिम है और बाबा है। अब हम देखते हैं, आंट मीरा ग्रोज वर्स एंड डाइड आफ्टर अ सीरीज ऑफ एम्बैरेसिंग एक्सीडेंट। आंट मीरा की भी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, बहुत सारे एम्बैरेसिंग एक्सीडेंट्स होते हैं उनके साथ में, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और उसके बाद आंट मीरा की भी डेथ हो जाती है और उनको भी जो है बरिड कर दिया जाता है। सो यहाँ पर जो है आंट मीरा भी छोड़कर चली गई हैं। नाउ इन देयर होम सिर्फ और सिर्फ बाबा और बिम ही रह गए हैं। बाबा मेंटली स्लो है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब अकेली बिम के ऊपर आ जाती है। So this is the part 1 and part 2 of the novel Clear Light of the Day written by Anita Desai. We have completed the very main points of the part 1 and part 2. In the next video I will come up with the part 3 and part 4 as well, and the novel will get completed. If you like it, please like my channel and please like the video, subscribe my channel and keep watching for the next video of part 3 and part 4 as well. Thank you.